Hello students, today we shall continue with the left part of your poem Hurt No Living Thing by Christina Rossetti from the book My Book of English. So starting from page number 66, vocabulary, we have our first part, pick out opposites of the following words from the poem and write them. Pick out the opposites, आपको यहाँ पर opposite लिखने हैं इन words के जो यहाँ दिए गए हैं. जैसे our first word is harmful. हार्मफुल का मीनिंग होता है नुकसानदायक, जिसका ऑपोजिट होगा हार्मलेस. HARMLESS हार्मलेस, जो नुकसान न पहुंचाता हो. अवर सेकेंड वर्ड इज सैडली, यानी कि दुखी प्रतीत होने वाला, जिसका ऑपोजिट होगा चीरिली, खुश प्रतीत होने वाला. CHEERILY चीरिली. और थर्ड वर्ड इज थिन, मतलब पतला, जिसका ऑपोजिट होगा फैट, FAT फैट, यानी कि मोटा. अवर नेक्स्ट वर्ड इज हेवी, भारी, जिसका ऑपोजिट होगा लाइट, हल्का, LIGHT. अवर नेक्स्ट वर्ड इज डेड, मतलब मरा हुआ. ऑपोजिट विल बी लिविंग, जीवित, LIVING लिविंग. Our last word is bright, चमकीला, जिसका ऑपोजिट होगा dusty, धुंधला, DUSTY dusty. Now our second part is harmless is a describing word. In this word, less suffix has been added to the word harm. Harmless एक word को describe कर रहा है, जिसमें less एक suffix add कर दिया गया है harm के साथ. We can also add the suffix full to make the word harmful. हम full suffix भी add कर सकते हैं और इसको harmful बना सकते हैं. Notice that the words harmless and harmful are opposite words. आप ध्यान दें कि harmless और harmful दोनों opposite words हैं. Here are a few more words ending in less and full. आपको कुछ examples दिए गए हैं, जैसे careless and careful. बच्चों, केयरलेस का मीनिंग होता है लापरवाह और केयरफुल का मीनिंग होता है बड़े ध्यान से. ऐसे ही आगे दिया है यूजलेस एंड यूजफुल. यूजलेस होता है बेकार और यूजफुल होता है लाभदायक. सेम हियर एक और वर्ड आपको दिया है होपलेस एंड होपफुल. होपलेस होता है आशा रहित और होपफुल होता है आशा से भरा. So on our next page we are given that we have to write at least 5 more words that take less and full as suffixes. आपको 5 और ऐसे words लिखने हैं जिनके साथ less और full suffix के रूप में प्रयोग होता है. तो हमारा पहला word है thankless, THANKLESS thankless, धन्यवाद रहित. और दूसरा word है thankful, THANKFUL thankful, धन्यवाद सहित. फिर आता है painless, PAINLESS painless, दर्द रहित. और दूसरा वर्ड है painful, PAINFUL painful. painful का अर्थ होता है दर्दनाक. नेक्स्ट आता है cheerless, CHEERLES cheerless, खुशी रहित, उत्साह रहित. और इसके साथ ही आएगा cheerful, CHEERFUL उत्साह के साथ. फिर है colorless, COLOURLESS colorless बेरंग. इसका ऑपोजिट हम बना सकते हैं फुल ऐड करके कलरफुल, COLOURFUL कलरफुल, रंग भरा, रंगीन. फिर है faithless, FAITHLESS faithless बिना भरोसे का. और इसका ऑपोजिट हम फेथ में फुल ऐड करके बना सकते हैं faithful, FAITHFUL faithful, जिसका मीनिंग होता है भरोसेमंद. नाउ fill in the blanks by choosing appropriate words from the box. आपको कुछ वर्ड्स इस बॉक्स में दिए गए हैं,
ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स यूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। आवर फर्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल, सुंदर, यूजलेस, बेकार, केयरलेस, लापरवाह, केयरफुल, ध्यान से, थैंकफुल, धन्यवाद सहित। A first blank is my mother is always dash. She crosses the road at the zebra crossing. मेरी माँ हमेशा बड़ा ध्यान रखती है is careful. She crosses the road at the zebra crossing. वो सिर्फ zebra crossing पर ही रोड क्रॉस करती है। Our second sentence is there are very dash for all the help that they have received. कि वे लोग बहुत आभारी हैं, थैंकफुल हैं फॉर ऑल द हेल्प दैट दे हैव रिसीव्ड, जो भी हेल्प उन्हें मिली उसके लिए। Our third sentence is the rainbow after the rain yesterday was dash. इंद्रधनुष बारिश के बाद एकदम सुंदर दिख रहा था। Our fourth sentence is my brother dropped his mobile phone into the bathtub and now it is useless. कि मेरे भाई ने अपने फोन को पानी में गिरा दिया और अब वह बेकार हो गया है। Our last blank is our maid was dash and she broke our dinner set. हमारी मेड उस समय लापरवाह थी, केयरलेस थी एंड शी ब्रोक आवर डिनर सेट, और उसने हमारा डिनर सेट तोड़ दिया। Moving on to the grammar section. In the first part we are given that we have to read the following line from the poem. Nor cricket chirping cheerily. Here, cheerily describes how cricket chirps. Action verb. यहाँ पर बताया गया है कि क्रिकेट किस तरह चिप करता है, वो cheerily चिप करता है। ये एक एक्शन वर्ब है। It describes the manner of chirping by cricket. ये बता रहा है कि क्रिकेट किस तरह चिप करता है। It is thus an adverb of manner, कि ये उसके मैनर को बता रही है। It tells how the action is done. ये बता रही है कि एक्शन कैसे किया गया। It is generally formed by adding ly to any adjective like quickly, slowly. ये किसी भी एडजेक्टिव में ly ऐड करके बनाया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। जैसे क्विक में ly जोड़ दिया बन गया क्विकली, स्लो में ly जोड़ दिया बन गया स्लोली। But when the adjective words ends in y as in cheery, we need to replace the final letter y with I before adding ly. लेकिन जब कोई भी एडजेक्टिव y से खत्म होता है जैसे cheery, हमें उस y को पहले I में बदलना पड़ेगा ly लगाने से पहले। जैसे cheery प्लस ly ये होगा cheerily, Mary plus ly, merrily, merrily. Here are some examples where the adjectives end in the letter y. Merry plus ly, merrily. Lucky plus ly, lucky में जब हम ly ऐड करते हैं वो luckily बन जाता है luckily. If the adjective ends in le, replace the e with y. जैसे gentle becomes gently, GENTLY, यहाँ पर e खत्म होकर y बन गया है। Same here, terrible becomes terribly, TERRIBLE, terrible becomes terribly, TERRIBLY, यहाँ पर भी e खत्म होकर y बन गया है। Now add ly to the words in bracket and complete the sentences. Read your lesson silently. SILENTLY, silently. Second is we heard the news happily. HAPPILY, क्योंकि जो वर्ड्स y से खत्म होते हैं उनमें ly ऐड करने से पहले I भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज रितु sang sweetly. SWEETLY, sweetly. The baby is crying loudly. LOUDLY. He did his work properly. PROPERLY, properly. He fought bravely. BRAVELY. तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि साइलेंट का मीनिंग होता है शांत,
लेकिन यहाँ बोला गया है रीड योर लेसन साइलेंटली, अपना पाठ शांति से पढ़ो। फिर है वी हर्ड द न्यूज हैप्पीली। हैप्पी का मतलब होता है खुशी और हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। हमने समाचार खुशी से सुना। रितु sang स्वीटली। स्वीट होता है मधुर और स्वीटली होता है मधुर अंदाज में। रितु sang स्वीटली, रितु ने बहुत मधुर आवाज में गाया। दिस बेबी इज क्राइंग लाउडली। लाउड होता है तेज और लाउडली होता है तेज आवाज में। द बेबी इज क्राइंग लाउडली, बहुत जोर से। ही डिड हिज वर्क प्रॉपरली। प्रॉपर होता है सही तरीका, प्रॉपरली होता है सही तरीके से। फिर है ही फॉट ब्रेवली। ब्रेव होता है बहादुर और ब्रेवली होता है बहादुरी से। नाउ देयर इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लेट्स रिसाइट अ पोएम डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट्स ऑफ वेरियस लिविंग थिंग्स। अब हम एक पोएम करेंगे जिसमें हम अलग अलग जीवों की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है इसमें काफी सारे जीव दिए गए हैं जो कि अलग अलग मूवमेंट कर रहे हैं। Frogs jump, caterpillars hum, worms wiggle, bugs jiggle, rabbits hop, horses glop, snakes slide, seagulls glide, mice creep, deer leap, puppies bounce, kittens bounce, lions talk, but I walk. This is a very beautiful poem talking about movements of every लिविंग बीइंग, रिटन बाय एवलिन बेयर। ये एक प्यारी सी पोएम थी जो एवलिन बेयर ने लिखी थी और वो बताते हैं कि अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से चलते हैं। कोई कूदता है, कोई रेंगता है, कोई उछलता है, कोई दहाड़ता है, लेकिन मैं चलता हूं। नाउ देयर इज राइटिंग पार्ट। इमेजिन that you plan to visit a zoo next week. Write a paragraph describing your plan. You may include the following information. सोचो कि आपको अगले हफ्ते एक चिड़ियाघर में विजिट करने जाना है, देखने जाना है, तो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है कि आपका क्या प्लान होगा। आप उसमें ये इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जैसे फर्स्ट इज व्हाट टाइम विल यू गो, आप किस समय निकलेंगे। हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे। विद whom विल यू गो देयर, आप वहां किसके साथ जाएंगे। व्हाट विल यू कैरी विद यू, आप अपने साथ वहां क्या क्या लेकर जाएंगे। व्हाट विल यू डू देयर, आप वहां क्या क्या करेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, आप वहां कितने समय तक रुकेंगे। तो हम इसको ऐसे प्लान कर सकते हैं, आई प्लान टू विजिट अ जू नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक एक चिड़ियाघर जाने का प्लान कर रहा हूँ, विचार बना रहा हूँ। आई विल गो देयर इन अ बस, मैं वहां बस से जाऊंगा। आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहां अपने माता पिता के साथ जाऊंगा। वी विल कैरी विद अस फूड, बिस्किट्स एंड वाटर बॉटल, हम हमारे साथ खाना, बिस्किट और पानी का प्रबंध कर कर जाएंगे। वी विल सी द वाइल्ड एनिमल्स देयर एंड एंजॉय, हम वहां पर जंगली जानवर देखेंगे और मजे करेंगे। वी विल स्टे देयर टिल इवनिंग, हम वहां शाम तक रुकेंगे। नाउ फॉलो अप। Look at the pictures of Sultanpur National Park in Gurgaon district. Visit this national park or any other bird sanctuary in your state and make a list of birds that you see there. आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो कि सुल्तानपुर पक्षी विहार की हैं, जो कि हरियाणा के गुड़गांव जिले में है। अब इस पक्षी विहार या किसी भी पक्षी विहार में जाने का प्रोग्राम बनाएं और नोट करें आपने वहां पर कौन कौन से पक्षी देखे। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर हर्ट नो लिविंग थिंग बाय क्रिस्टीना रोसेटी। तो आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है हर्ट नो लिविंग थिंग विच वाज रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी, जिसमें ये बताया गया है कि हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।